explanation of the line emission spectrum and calculation of wavelength by energy transitions. ठीक है, तो energy level of atoms are discrete. Energy levels of atoms are discrete. है, तो energy level diagram, energy diagram for mercury atom is shown here. So if ground state is taken as 0 electron volt, then first excited state of mercury atom will be 4.86 electron volt. Second excited state of mercury atom will be 6.67 electron volt, and third excited state of mercury atom will be 7.2 electron volt, and ionization state is 10.4 electron volt. ठीक है, तो जनरली एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट. जनरली एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट. Why? In ground state energy is least. So any system state in a level where it has least energy. So in ground state energy of atom is least. So generally atom stay in ground state. But when it receives suitable energy, then it go to any higher energy level. That is second, third, fourth, and so on. ठीक है, तो in when atom is in third energy, second energy level, or third energy level, or fourth energy level, then this state of atom is known as excited state. This state of atom is known as excited state. ठीक है, तो in excited state life of atom is, in excited state life of atom is 10 8 power minus 8 second. When atom come in state 4, then it stay in it stay in this energy level for time 10 8 power minus 8 second. In excited state life of atom is 10 8 power minus 8 second. After 10 8 power minus 8 second, atom transfer, the atom jump from any excited state to the any lower energy level, that is in third energy level or second or ground state. So atom can jump from energy level 4 directly to ground state, or come in second energy level, or can jump in third energy level. So when atom jump in third energy level, then after 10 8 power minus 8 second it jump from third to second. ठीक है, when it come from or third to first. When atom come in second energy level, then it jump from second to ground state in 10 8 power, after 10 8 power minus 8 second. ठीक है, तो atom stay in energy level 4, third, second, or any certain state for time 10 8 power minus 8 second. After 10 8 power minus 8 second, it jump to any lower energy level. ठीक है, तो when it jump from higher energy level to lower energy level, then it emit energy. So equal to energy difference, it emit energy in the form of energy packet, that is in the form of photon, having energy equal to difference of two energy levels. ठीक है, when atom jump from energy level 3 to 2, then it emit a photon having energy equal to difference of energy of 3 and 2. ठीक है, तो for transition 4 amount of energy having amount of energy possessed by photon in this transition will be equal to E2 minus E1. For transition 4, energy of photon, emitted photon will be equal to E2 minus E1. ठीक है, तो this energy is equal to h nu. Energy of photon is h nu. ठीक है, तो we can write h nu is equal to E2 minus E1. Value of E2 for transition 4, value of E2 is 6.67. तो write here 6.67. ठीक है,
माइनस 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 E1, वैल्यू ऑफ E1 इज, जैसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन डेराइव करते हैं फिर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो राइट दिस डेल्टा E, राइट दिस डेल्टा E, then H nu can be written as nu is C by lambda, क्योंकि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड लैम्डा, we have to find lambda. So HC is equal to delta E into lambda. So lambda is equal to HC upon delta E, है ना। तो राइट वैल्यू ऑफ H and C, तो वैल्यू ऑफ H is 6.63 into 10 raised power minus 34 and C is 3 into 10 raised power 8 upon डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए चेंज इट इनटू जूल, देन यू गेट 6.63 into 10 raised power minus 34 into 3 into 10 raised power 8 डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised power negative 19, ठीक है, डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज इन जूल, देखिए 6.63 इज जूल सेकेंड और दिस इज मीटर सेकेंड -1, सो दिस एनर्जी कम इन जूल, और सो चेंज दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टू चेंज दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस, है, ठीक है। व्हेन यू सिंपलीफाई दिस देन यू गेट 12375 ठीक है, अपॉन डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू 10 raised power minus 10 मीटर। तो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन। तो दिस वैल्यू 10 raised power minus 10 can be written 10 raised power minus 10 meter can be written in angstrom ना। तो when any atom jump from one energy level to second energy level, ठीक है, then wavelength of photon emitted by atom, the wavelength of photon emitted in this transition will be given by this equation ना। पर delta is measured in electron volt, delta किसमें मेजर किया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज आप जो है किसी भी ट्रांजिशन में निकलने वाले फोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। आप जैसे ट्रांजिशन 1 में कितने वेवलेंथ का फोटॉन निकलेगा, ट्रांजिशन 2 में कितने वेवलेंथ का फोटॉन निकलेगा, ट्रांजिशन 3 में कितने वेवलेंथ का फोटॉन निकलेगा, ठीक है, 4 में, 5 में, 6 में, किसी ट्रांजिशन में कितने वेवलेंथ का कितने एंगस्ट्रॉम का फोटॉन इमिट होगा, इस इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन 4 के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। ट्रांजिशन 4 में जो फोटॉन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये निकालते हैं, ठीक है। जैसे जब एटम एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 3 से एनर्जी स्टेट 2 में आएगा तो ये फोटॉन इमिट करेगा, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आपने माना है, न्यू। तो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये चीज फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो डेल्टा E वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो डेल्टा E किसके इक्वल है, ये आपका 12375 अपॉन डेल्टा E। डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल 3 and 2, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल 3 and 2। तो एनर्जी ऑफ 3 is 6.67, एनर्जी ऑफ 3 is 6.67 and energy of state 2 is 4.86, तो राइट हैंड 4.86, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12375 डिवाइड बाय, अब इसका डिफरेंस बताओ कितना आएगा, डिफरेंस लो कैलकुलेटर कहाँ तुम्हारा, देखिए 17 से 7 से 6 माइनस करेगा तो 1 आएगा, फिर 16 से 8 माइनस करेगा तो 8 हो जाएगा, और
और फिर यहाँ 5 बचा, 5 से 4 माइनस करें तो 1 हो जाएगा ना। तो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई। अब इसको डिवाइड करें कितना आएगा, डिवाइड कर रहा हूँ 6837 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है 6837 एंगस्ट्रॉम, है ना, ठीक है। तो देखिए इस ट्रांजिशन में जो है 6837 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन निकलेगा ना, ऐसा फोटॉन निकलेगा जिसकी वेवलेंथ क्या होगी 6837 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये वेवलेंथ किस कलर का है बताइए, ये वेवलेंथ जो है रेड कलर का है। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ किस में आएगा, रेड कलर में आएगा। किस में आएगा, रेड फोटॉन का, ठीक है। ये आपका रेड फोटॉन माने जो फोटॉन निकलेगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा ना, क्योंकि रेड फोटॉन, रेड का रेंज क्या होता है, रेड कलर का रेंज आपका जो है 6250 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है 740 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7400 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये जो वेवलेंथ है इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है ना, माने रेड कलर में आ रहा है। तो इस ट्रांजिशन में जो है रेड कलर का फोटॉन निकलेगा। अब किसी ट्रांजिशन में ग्रीन निकलेगा, किसी में येलो निकलेगा, किसी में ब्लू निकलेगा, किसी में वायलेट निकलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रांजिशन में डिफरेंट कलर के फोटॉन निकलेंगे, ठीक है। और जब 7 कलर के फोटॉन इमिट होंगे तो आपको क्या होगा, एक व्हाइट लाइट मिलेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर क्या होता है, आपका व्हाइट लाइट होती है ना, जैसे विबज्योर, विबज्योर वायलेट, इंडिगो, विबज्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ना। तो किसी ट्रांजिशन में वायलेट कलर का फोटॉन निकलेगा, किसी ट्रांजिशन में इंडिगो कलर का निकलेगा, किसी ट्रांजिशन में ब्लू कलर का निकलेगा, किसी ट्रांजिशन में ग्रीन कलर का निकलेगा, किसी ट्रांजिशन में येलो कलर का निकलेगा, किसी ट्रांजिशन में ऑरेंज कलर का निकलेगा, किसी में जैसे इस ट्रांजिशन में रेड निकलना है, ठीक है। या फिर इससे कम के भी वेवलेंथ निकल सकते हैं ना। वायलेट से कम वेवलेंथ होगा तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, रेड से ज्यादा होगा तो इंफ्रारेड माने हीट निकलेगी ना, ठीक है। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम होता है ना। जो रेडिएशन है क्यों हो रहा बताइए, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। एटम जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाते हैं, जैसे हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटॉन इमिट करेगा, ठीक है। तो रेडिएशन इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो जैसे आपको लाइट कहाँ से मिलती है, जैसे ट्यूबलाइट आप जलाते हैं या एलईडी जलाते हैं तो लाइट कहाँ से मिलती है बताइए, जब आप जलाते हैं तो उसमें फिल्म मरकरी, जैसे मरकरी लैंप जलाए तो उसमें जो फिल्म मरकरी एटम होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ना। और एक्साइटेड किसी एक्साइटेड स्टेट में जाकर जब किसी लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटॉन इमिट करेंगे, ठीक है। जो कि अगर विजिबल रीजन में आएगा तो आपको दिखाई देगा, अब विजिबल रीजन में नहीं आएगा तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो विजिबल रीजन आपका कहाँ से कहाँ तक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। अगर आप जो फोटॉन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, तो ऐसे फोटॉन आपको दिखाई देंगे। अगर इसके बाहर है तो आपको वो फोटॉन दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है रेडिएशन या लाइट इमिशन कैसे होता है बताइए, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल है। जब एटम जो है हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब भी आपको लाइट मिलती है, ठीक है, या कोई रेडिएशन मिलेगा, हाँ। और जब एटम जो है लोअर से हायर में जाता है तो उस केस में कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, कोई फोटॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जब एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो ऐसा ट्रांजिशन क्या कहलाता है, इमिशन ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमिशन ट्रांजिशन है। और जब एटम जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटॉन तो ऐसा ट्रांजिशन क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहलाता है। तो इमिशन नंबर ऑफ इमिशन ट्रांजिशन इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एटम ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोर्थ में गए और फोर्थ में जाने के बाद यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ पर 10.16 सेकंड तक रहेगा। उसके बाद किसी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो लोअर एनर्जी लेवल में फर्स्ट में आ सकता है और थर्ड में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है।
या फिर थर्ड से जो है क्या करेगा, सेकंड में आएगा या फिर फर्स्ट में आएगा, ठीक है, या फिर सेकंड में आकर के फर्स्ट में आएगा। तो देखिए एक एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग आपको 6 इमिशन ट्रांजिशन मिल रहे हैं। देखिए 6 इमिशन ट्रांजिशन मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 इमिशन ट्रांजिशन मिल रहे हैं। तो इस टाइप से लाइट आपको कहाँ से मिलती है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो किसी ट्रांजिशन में आपको विजिबल स्पेक्ट्रम मिल सकता है, किसी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल सकता है, किसी में इंफ्रारेड रेडिएशन मिल सकता है, किसी में एक्सरे फोटॉन मिल सकते हैं, किसी में गामा रे फोटॉन मिल सकता है, ठीक है। तो रेडिएशन टेक प्लेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इज लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ईच एटम है जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। तो जब एलिमेंट के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं तो उसके लाइन स्पेक्ट्रम भी फिक्स होंगे, सर्टेन लाइन स्पेक्ट्रम देगा, वो भी क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, अलग अलग, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एटम के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, और स्पेक्ट्रम इसलिए कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक। लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, नहीं है।